everyone, this is CA Namrata Karwa and today you are going to listen a story which is really close to my heart. How did CA came into my life? How was my overall journey? Things that you should apply into your studies as a CA aspirant and also the mistakes that you should avoid being a CA aspirant. So it's going to be a power packed session. So stay tuned with me till last. So फर्स्ट ऑफ ऑल सीए मेरी लाइफ में आया कहां से? बहुत ही सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का मेरे लिए. माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, सो आई वाज नॉट हैविंग एनी सेकंड थॉट इन माय माइंड. ठीक है, सबसे पहली चीज. और जैसे बोलते हैं ना कि टेंथ तक हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है. वी शुड एक्सप्लोर व्हाट वी आर गुड इनटू एंड व्हाट we are bad at and accordingly we should take the decisions. Okay, so ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ because I was living in a very small zone. And it was a dream of my parents as well that I should pursue chartered accountancy course as I was a very बोलते हैं ना bright student from like my childhood. Okay, so yes, absolutely, I also have not like thought too much about it. That okay, I was like okay now after 10th I have to go to a commerce college and I have to pursue this course. Okay, so it is that simple. Okay, now but कोई भी स्टोरी इतनी सिंपल होती नहीं है. इट डू हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट? So you are going to listen that so too soon. Okay, so yeah, as soon as I finished off my 11th, okay, I belong to like Bidar, which is situated in Karnataka, and there 11th and 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो है वो होते हैं अप्रैल के टाइम पे. ठीक है, एंड अटेम्प्ट होता है जून के टाइम पे. तो क्या होता है ना कि 12th के बाद में यू डू नॉट गेट वेरी मच अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि है ना अप्रैल से शुरू होके एग्जाम्स 12th के बोर्ड के लाइक इट फिनिश ऑफ टिल मे, है ना. तो वहां पे आपको सीए के प्रेप के लिए टाइम नहीं मिल पाता है आफ्टर 12th. ओके, तो my father took a decision that you are going to do a crash course of CA foundation after 11th only. Okay, so this was like really tough for me because I was just 11th passed out and I was a very लाइक बोलते हैं ना कि फैमिली से बहुत ज्यादा टच में रहने वाली लड़की एंड टू मच सेंसिटिव girl, and suddenly she have to like move out from her own nest and into the world which she never imagined it will be so soon. Okay, so it was really tough for me कि मुझे 11th के बाद ही सीए का क्रैश कोर्स करना है. एंड गाइज 11th में हमें सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है, बाकी जो कोर्सेस लाइक 12th के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ सीए फाउंडेशन में कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट्स तो है. So again, I was completely blank when I pursued my CA foundation ka crash course. But the plus point here, as I mentioned, that I was a bright student, and by bright I mean that I was a disciplined student. ठीक है, अगर मैं कोई चीज करती हूँ तो I do it in a bit dedicated way. I do it in a bit disciplined way. डिसिप्लिन तो मैं इतना नहीं बोलूंगी, बट हाँ डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जरूर करती हूँ. ठीक है, तो I just simply finished off my CA फाउंडेशन का क्रैश कोर्स आफ्टर 11th ओनली. ठीक है, 2.5-3 महीने में मैंने कंप्लीट कर लिया क्रैश कोर्स. एंड वहां पे भी सब लोग वाज लाइक अरे ये तो सिर्फ 11th पास आउट है. आई वाज द स्मॉलेस्ट इन द क्लास एट दैट टाइम. ओके, आई लाइक टुक क्लासेस फ्रॉम पुणे. Okay, Prestige Point, the CA ka hub, है ना. So yes, and the lecturers were too good, like Sushil Bhandari sir and Prashant Sada sir. They like used to help me a lot because as I said, I was really sensitive and they actually helped me a lot. Okay, and I remember them like, and I'll always remember them. And then after that, I continued with the CA foundation का course with my 12th वाला part.
है ना। तो मैं 12th की स्टडीज भी करती थी एट द सेम टाइम। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं मैं सीए फाउंडेशन का कोर्स भूल ना जाऊं, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2.5-3 महीने का क्रैश कोर्स किया था, है ना। तो आई कंटिन्यूड माई सीए फाउंडेशन वाला जो स्टडीज था विथ माई 12, ताकि मैं कोई कॉन्सेप्ट भूल ना जाऊं। मैं हर हर दिन लाइक एन आवर और 2 or 3 hours आई यूज टू डेडिकेट फॉर सीए फाउंडेशन। एंड ताकि मुझे पता था कि जब मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं 12th के, तो मुझे बाद में लास्ट मोमेंट पे मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मुझे अभी से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था मेरे लिए। एंड द मोस्ट सपोर्टिंग फैक्टर वॉज माई पेरेंट्स, माई फैमिली। My father used to ask me each and every question like कहाँ पे डाउट है, क्या डाउट है। He used to support me really throughout my whole CA journey. Actually, he was the person who used to take, who used to register for my exam, who used to like look after everything. वो जो बोलते हैं ना, जो टेक्निकल जो पार्ट है, कब रजिस्टर करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो he is the person who looked after me and my mom ध्यान रखती थी कि मैं अगर सुबह जल्दी उठ गई हूँ तो she used to bring breakfast for me and she used to bring tea for me and all that stuff. Okay, as every mom do. Okay, so I'm very very grateful for that part. And then चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया and I cleared in first attempt. And after that the major decision was again I have to leave my native place, which is Bidar, and I moved on to Pune. ओके, नाउ न जंगल बिगिंस। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि आप एक छोटे से शहर को छोड़ के अब एक जंगल में आ चुके हो, एंड उस टाइम पे थोड़ी सी मेच्योरिटी बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, मैंने बोला था कि पहले मतलब मैं बहुत ही ज्यादा छोटे जोन में थी। अब वो जोन छोटा नहीं था, बिकॉज आई वॉज एन हॉस्टलाइट। आई स्टडीड एट राठी हॉस्टल, पुणे, and very good hostel of course. And then there the real ups and downs in my journey began, because there I found that there are many other courses which I could have perceived according to my interest, according to my hobbies also. It's not just CA अपनी दुनिया नहीं है। There are many things. From initial level, I am a very creative person. I love designing. I love dancing. Okay, I love many things. वो बोलते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है एंड आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर देते हो उन बहुत सारी चीजों में। सो आई एम दैट पर्सन। आई एम दैट पर्सन की मुझे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है ना। मुझे डांस में भी इंटरेस्ट है, मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट तो है। ठीक है, इंटरेस्ट तो है क्योंकि मैं पढ़ लेती हूँ। फिर उसके अलावा मुझे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में भी इंटरेस्ट है। मुझे आउटफिट्स को क्रिएटिव तरीके से बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो नाउ द रियल हर्डल बिगेन, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से दूर थी एंड वहां पे मेरा थॉट प्रोसेस था, यार मैं तो दिन भर पढ़ाई कर रही हूँ, हॉस्टल में कुछ लड़कियां ऐसी है जो कितने मजे कर रही है, जो वहां पे सिर्फ बीकॉम करने के लिए। ठीक है, आई फाउंड that the others are enjoying, and that was the point which was developing in me and which was taking me away from my track. Okay, but like touchwood, I cleared my CA inter first group and first attempt. Okay, very important thing here, guys. I never gave both groups together because I knew my strengths. I was a very sensitive person. I could not handle too much burden. I used to take a lot of pressure for the exams, and मैं बहुत सी ज्यादा डरी और फियर्ड में रहती थी कि यार इतनी पढ़ाई कैसे होगी, मैं कर लूंगी क्या, क्या होगा, कैसे होगा, इतना पढ़ना है, ये पेंडिंग है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि दोनों ग्रुप्स का बर्डन एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, एग्रीगेट के बारे में मत सोच, पास होने के बारे में सोच। एंड दैट प्योरली वाज द गोल्डन डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने लाइफ में अपनी चीजें, है ना। तो वही मैंने किया। मैंने ग्रुप बाय ग्रुप अटेम्प्ट दिया था एंड फर्स्ट ग्रुप मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से मेरी आर्टिकलशिप तुरंत ही शुरू हो गई। इट वॉज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम एनीवेयर। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे मिला बड़ा सा झटका, है ना, क्योंकि मैं अब तक
ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप 1 देने तक मैं थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट तो हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं डेडिकेटेड थी, मैं कमिटेड थी मेरे कोर्स की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकलशिप शुरू हुआ एंड अगेन दैट लॉट ऑफ बर्डन, I have to go office and I have to work over there. फिर मतलब it was not somewhere adjusting and balancing with my body also because my health started deteriorating. ठीक है, I was not able to cope up with a lot of mess and I was not able to cope up with a lot of hectic schedule basically into my life. So there were a lot of health issues which I was going through, and then after that ऑल्सो इट हैपेंड दैट जो मैंने सेकेंड ग्रुप दिया था वो नहीं निकला। ठीक है, अभी नहीं निकलने का रीजन था ऑडिट। यू वॉन्ट बिलीव इट, इट वॉज ऑडिट। ओके, so after that my mind was literally blown and it was the most of the difficult phase। मेरा हेल्थ इश्यूज भी हो रहा था एंड फिर मेरे को लग रहा था कि यार इतने सारे दूसरी चीजें भी है जिसको मैं परस्यू कर सकती हूँ, जो मेरा ड्रीम बन सकता है। अब मैं सीए करने के बाद करूंगी क्या, वो सारी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एट द सेम टाइम मैं फेल हो गई, तो वो मेरा लाइफ का सबसे पहला फेलियर था, जिसकी वजह से अगेन माई मोरल वॉज टू लो। बट देन I gathered up anyhow and I decided because ऑडिट की वजह से मैं फेल हो गई, क्योंकि और है ना पॉइंट वॉज कि मेरा वो जब मैंने पेपर दिया था ना वो बहुत ऑसम गया था एंड मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं ऑडिट में बहुत अच्छे से स्कोर करूंगी, बट इवन आई डिडंट स्कोर 40। ठीक है, और यही प्रॉब्लम होती है सबके साथ। तो फिर मैंने है ना बहुत बहुत ज्यादा वापस से उस सब्जेक्ट को पढ़ा, और जो भी मैं अभी ऑडिट पढ़ा रही हूँ ना वो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इतना स्ट्रगल किया इस सब्जेक्ट को निकालने के लिए। मैंने क्वेश्चन आंसर लाइक स्कैनर उठा के मैंने हर क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट पेपर, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज, एंड मेरे को पता चला कि भाई मैं कितनी गलत थी। ठीक है, इस लैंग्वेज को, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है और ऐसे लिखा जाना है। मैं वही सेम चीज भी आपको मेरे क्लासेस में बोलती हूँ बिकॉज इट इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस। मेरा जो भ्रम था वो टूट गया, और इसीलिए मैं आपको भी हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ कि प्लीज डोंट बी इन योर ओन मिथ्स। दिस सब्जेक्ट इज अ बिट ट्रिकी कि वो निकल पाए। नॉट ओनली दिस बट एवरी थेरोटिकल सब्जेक्ट इज अ bit tricky specifically in CA course. You need a sort of presentation, you need a sort of understanding of the concepts, you need a sort of answer writing wala time management. ठीक है, these are few of the most important points you need to know. ठीक है, अभी उसके बाद में I scored exemption in audit। ठीक है, जब मैंने सेकेंड ग्रुप दिया, फिर सेकेंड टाइम मेरा जब रिजल्ट आया तो I scored exemption in audit and after which I was really happy। but उसके बाद में अगेन आर्टिकलशिप का वो लंबा वाला पीरियड जहाँ पे हमें अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। पहले तो ऐसे लगता है कि यार ठीक है लाइफ कितनी अच्छी है ना, ठीक है अपन तो पास हो गए, अब तो 2.5 साल मजे करो, है ना। बट एक्चुअली मजे नहीं हो पाते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ यू विल रिलेट दिस राइट नाउ टू मी। वो मजे नहीं रहते हैं। आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता, मतलब शुरू होता है, एक डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ वाला जो फेज है वो शुरू होता है। एंड वहां पे मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मुझे वो सीए का काम करके खुशी नहीं मिल रही थी। आई वॉज नेवर हैप्पी आफ्टर परफॉर्मिंग दैट वर्क and it was making me stressed, it was making me irritated, it was making me like a kind of a depressive state। ठीक है, तो मैं उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। और फिर अपन फालतू की बातें सुनते हैं ना, फालतू नहीं एक्चुअली, बट उस टाइम पे वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, इसलिए मैं आज उसको फालतू बोल रही हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। भाई ये इतना सिंपल नहीं होता है। अगर तुमने कोई जर्नी शुरू कर दी है तुम उसको मिड में नहीं छोड़ सकते हो, इतने एफर्ट्स देने के बाद नहीं हो सकता है ये आपसे। ठीक है, तो मैं भी उसी क्वेश्चन मार्क वाले फेज में थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ऊपर से क्लासेस का प्रेशर। और मेरा एक डिसीजन तो सॉर्टेड था कि हाँ मुझे वापस से ग्रुप बाय ग्रुप ही देना है।
ठीक है। तो अगेन मैंने जैसे तैसे वो ईयर्स निकाले, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ, बहुत सारे इरिटेशन के साथ। एंड एट द सेम टाइम फिर मैंने बाद में क्लासेस भी ज्वाइन कर दिए थे, तो मॉर्निंग में क्लास होता था, इवनिंग में क्लास होता था, एंड फाइनल के क्लासेस माय गॉड 3.5 घंटा 4 घंटा। भाई सुबह तो एक तो मुश्किल से नींद खुलती है, इतनी ठंड होती थी पुणे में। एंड दैट पीरियड जाके क्लास में बैठते थे एंड आई लिटरली यूज्ड टू स्लीप। एंड आई टुक लॉ फ्रॉम जयरमन सर, एंड वो लिटरली पॉइंट आउट करते थे स्टूडेंट्स को, चौक फेंकते थे, तो सो गई, व्हाट आर यू डूइंग, एंड ही यूज्ड टू like he used to bombard like anything. He was again a very good teacher. And अगेन कुछ कुछ टीचर्स है, एंड अगेन जोशी मैम के क्लास में बहुत ज्यादा सोती थी मैं, बहुत ही ज्यादा सोती थी। अकाउंट्स का क्लास मैंने उनके पास से लिया था बाद में से। एंड या लाइक दीज आर द थिंग्स। अगेन मैंने ऑडिट सेल्फ किया फाइनल में, क्योंकि मुझे पता चल गया था इंटर में मेरा जो ऑडिट का हाल था उससे मुझे पता चल गया कि हाँ मैं ऑडिट अब मेरा कॉन्फिडेंट वाला सब्जेक्ट है। तो मैं ऑडिट को सेल्फ ही की, एंड फिर से मैंने सेल्फ करके ही उसे निकाला। फिर उसके बाद में क्लासेस को मैंने जैसे तैसे किया, बट पता है मेरे लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज कहाँ आया? टिल माई एग्जाम्स केम, माई होल स्टडी वॉट एवर क्लासेस आई डिड, इट वॉज वाइप्ड ऑफ। लिटरली मैं सब कुछ भूल चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट में पढ़ती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है सीरियसली। फिर मैं नोट्स खोल के देखती थी, अरे हाँ ये वाला तो मैंने लिखा हुआ है मेरे हाथों से भाई, तो ये वाला मैंने पढ़ा हुआ है। तो इट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे लिए वो शुरू से स्क्रैच से शुरू करने जैसा था। ये चीज मेरे साथ फाइनल में हो चुका है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड, और यू शुड फाइंड अ फॉर्मूला और सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है? एंड आई एम गोना टेल यू हाउ। ओके, सो यस, दिस वाज द थिंग। ओवरऑल अगेन मैंने पहला ग्रुप अगेन मैंने निकाल लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड और एक चीज जो मेरे साथ हो रही थी उस टाइम पे, आई वॉज इन टू लाइक अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम, एंड अगेन दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई नेवर लेट दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ टू कंट्रोल माई प्रोफेशनल वाला जो लाइफ है। आई नेवर लेट दैट पार्ट अफेक्टेड माई स्टडीज। एंड he is the same person to which I am married right now. Okay, so yeah, so I was able to manage both of the things together because, as I said, I was committed and dedicated wholeheartedly to my CA career course. ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन ग्रुप 2 नहीं निकला। ठीक है, फिर उसके बाद में से मैंने वापस से लेकिन ना उसमें क्या अच्छी बात हुई थी, मेरे को एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ गया ग्रुप 2 में। ठीक है, एंड दैट वाज एसएफएम। आई थिंक एसएफएम था वो सब्जेक्ट उस टाइम पे। ठीक है ठीक है, तो अगेन आई वाज रियली 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 हैप्पी कि यस आई हैव डिड समथिंग गुड। एंड फिर उसके बाद में अगेन आई वर्कड हार्ड, एंड अगेन आई लाइक फोकस्ड ओनली ऑन माई स्टडीज, बिकॉज अब ना एक 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 अलग लेवल का एक स्ट्रगल बन गया था मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं क्लियर नहीं कर पाती तो उसका ब्लेम मेरे आता लव लाइफ पे, एंड जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एंड ये होता है पेरेंटल प्रेशर में एंड सोसाइटी के प्रेशर में कि तू गलत रास्ते पे चली गई एंड उसकी वजह से तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तेरा पास नहीं हुआ, तू तो इतनी होशियार थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई नेवर वांट टू लिसन ऑल दो स्टफ। सो आई वाज वेरी श्योर इन माय माइंड कि नहीं, ये चीज तो मैं नहीं होने दूंगी अपने साथ। तो फिर मैंने होल हार्टेडली वापस फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया अपने स्टडीज पर, एंड मैंने अपनी इज्जत बचा ली बेसिकली। ओके, मैंने अपनी इज्जत बचा ली उस टाइम पे। आई गॉट क्लियर and my whole life changed the day when the result was out. It was somewhere like 2018 वाला जो अटेम्प्ट था, 2019 में जनवरी में रिजल्ट आया था, एंड आई वाज क्लियर्ड सीए फाइनली। एंड उसके बाद में मम्मी पापा ने मुझे लेके गए थे दुबई की ट्रिप पर, बिकॉज मैंने सीए को क्लियर कर लिया था। ओके,
So this was my whole CA journey, definitely of many ups and downs, struggles, hurdles, distractions, and I could say like a lot of stuff. But but as I said, the things that you should remember and you should learn while performing any sort of course, not only CA, it might be CS, CMA, or any, like if you are pursuing any other UPSC, MPSC और साइंस का भी कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, जनरल पढ़ाई करते टाइम, ठीक है, आपको इन चीज का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट हैव एनी ऑप्शन बी. The moment you have option B in your mind, your brain के बीच में एक लाइन बन जाती है, ठीक है. योर ब्रेन गेट कंफ्यूज वेदर आई शुड फोकस ऑन चॉइस ए और वेदर आई शुड फोकस ऑन चॉइस बी. तो आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है ना, वो आपको, मैं आपको साइंटिफिक रीजन दे रही हूँ, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, वो आपको बोलेंगे अरे अरे ये अच्छा हो रहा है, अभी चॉइस ए अच्छा है, ठीक है. लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपको चॉइस ए जब फ्रस्ट्रेट करने लगेगा, ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टी होगी चॉइस ए को फिनिश करने में, तब आपका ब्रेन बोलेगा ओके भाई ठीक है ना, चॉइस ए नहीं तो चॉइस बी तो है. तो आपको जो एनर्जी चॉइस ए में लगानी थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एंड एनी हाउ योर ब्रेन विल टेंड यू टू मूव टूवर्ड चॉइस बी. अंडरस्टैंड दिस थिंग. नेवर हैव चॉइस बी. ओके, देन stay dedicated and committed to what you are doing. For example, you have no choice now. ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपने चॉइस ए को चूज कर लिया है. अब स्टे डेडिकेटेड एंड कमिटेड का मतलब ये है कि आप उसके पीछे लगे रहो. अब फेलियर आ गया तो फेलियर से डरो मत, ठीक है. अगर बीच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई माइंड में कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है, उसको तो मेहनत ही करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी वो इतना अच्छा कर रहा है, अपने लाइफ में कमाने लग गया, डोंट 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 जस्ट बाहर की दुनिया हमेशा सबको अच्छी लगती है. जो पर्सन कर रहा होता है उसके पास भी और कोई ना कोई तो स्ट्रगल्स वो भी कर ही रहा होगा. नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, नो ब्लडी पर्सन इज हैप्पी इन दिस होल वर्ल्ड. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना, शिद्दत के साथ उसको करो, ठीक है. एंड सीए इज अ कोर्स जहां पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब आपको पढ़ाई को भी प्लान करके करना पड़ेगा, ठीक है. हैफाजार्ड में भी पढ़ाई नहीं करनी है. जैसे कि मैंने बोला, एक ग्रुप दे रहे हो या दो ग्रुप दे रहे हो, पहले से अच्छे से डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद में उसके हिसाब से एक स्टडी प्लान बनाओ. स्टडी प्लान बना के माइक्रो प्लानिंग करो. कौन से सब्जेक्ट को कब तक खत्म करना है, फर्स्ट रीडिंग कब तक खत्म होगी, सेकेंड रीडिंग नहीं, लाइक फर्स्ट रीडिंग के बाद रिविजन आ जाएगा, ठीक है. फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, एग्जाम के डे की प्लानिंग करो. एंड ये सारी चीजें मैं अपने मेंटोरशिप के बैच में स्टूडेंट्स को एज अ फ्री पर्क देती हूँ. अगर आप मेरे मेंटोरशिप के बैच में भी आते हो तब मैं आपको एक स्टूडेंट क्लैरिटी का टेस्ट देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे आपके करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है. और उसके बाद में आप बहुत सारे फ्री पर्क्स एंजॉय करते हो, जिसमें से study plan with micro planning is the biggest positive thing that you are going to get, because आपके पास एक रोड मैप होगा. अब आपको बस उस मैप के हिसाब से ड्राइविंग करती जानी है, आपको कहीं पे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए. और अगर ब्रेक लग भी गया तो आई अगेन change that plan according to your current situation, and I like help you out with the further journey till the date of your exams. Okay, so कंसिस्टेंट रहो. एकदम कंसिस्टेंट मतलब हर दिन आपको 6 घंटा पढ़ना है ऐसा नहीं है. कभी प्लान, कभी 5 घंटा होगा, कभी 7 घंटा होगा, कभी 9 घंटा होगा. लेकिन अगर आपके पास एक प्लान रहेगा ना, तो उस चीज को लाइक आप थॉरली, आप अपने पूरे 100% बोलते हैं ना, ट्राई के साथ, एफर्ट्स के साथ उसको परफॉर्म कर सकते हो. प्लानिंग करते हुए चलो हर चीज की. अभी बीच में कहीं पे फैमिली फंक्शन है, वहां पे जाना है, तो उस टाइम पे कितना मिस होगा, अपन को उसको पहले कवर करना है या बाद में. बीच में दिवाली आ जाती है एग्जाम्स के बीच में हमेशा, ठीक है, नवंबर दिसंबर के अटेम्प्ट में. अब तो सितंबर हो गया है, बट पहले दिवाली आ जाती थी, तो मैं पहले ही करती थी कि हाँ 2 दिन आपको लाइक कुछ भी नहीं रहेगा, करने पढ़ाई नहीं होगी, तो उस हिसाब से आगे पीछे उसको कवर अप करो. तो इस तरीके के हिसाब से आप प्लान करते हुए चलिए अपनी सारी चीजों को, ठीक है. अब उसके अलावा नेवर फील गिल्टी ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है.
Don't feel stressed out, don't feel guilty, and just stay strong throughout your journey. Everything will make sense at the end. ठीक है, आप बीच में ही यू नो किसी चीज को अपने ऊपर कंट्रोल मत आने दीजिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, एंड जस्ट हैव दैट एम इन योर माइंड, एंड बस लगे रहो उस एम को पूरा करने के लिए. ओके, सो दिस वाज इट अबाउट माय सीए जर्नी. होप कि आपको बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे होगे इस स्टोरी से, एंड आई होप कि आप बहुत सारी चीजें सीखो इस सेशन से, एंड अपने लाइफ में एम्प्लॉय अपने लाइफ में उसको अप्लाई करो, एंड आप जल्दी से सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, वॉट एवर कोर्स यू आर परसिविंग, आप जल्दी से उसे clear karo. All the very best for your exams. If you have any problems while performing this course, you can also connect me on Instagram. My channel name is peakprep_official. You can download my app easily, which is available on Play Store. As I said, I take mentorship sessions for student, and also as I teach audit टू. तो अभी उसके समरी नोट्स भी मैंने अपलोड किए हैं ऐप के ऊपर, जिससे आप बहुत इजीली इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी क्रैक कर सकते हो. ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच.